Okay, good morning, everyone. Okay, so far we have seen about stack, and we have also seen how to insert element in a stack, how to delete element from a stack, and mind my words that a stack is a last in, first out kind of algorithm. Na? Stack is an extension of right now we can say stack is an extension of array and which follows last in first out, LIFO, LIFO. LIFO meaning whosoever entered at the last is able to exit first. जो लास्ट में आता है वो पहले निकलता है. And in Q is FIFO, first in first out. Whosoever come first exit first. Right? Are you agree with me? Yes, sir. Okay, right. So we have seen about Q also. In Q, we initially saw a linear queue where we are inserting element at rear and deleting element from front. Later we realized that sometimes when we insert and queue become full, still there are some places those are empty, but we are not able to insert anything. So at this moment we introduced a solution which is circular queue, and we have seen the implementation of circular queue, that how to create a circular queue and how to insert element in a circular queue. I think this part I already discussed. Agree? Yes, sir. Mm. So did we dis- I doubt that we discussed about deletion from circular queue, and that I leave up to you. That try your own and write the code how to delete element from a circular queue. This is not any more typical part. In the evening section session today, I will discuss about dynamic memory allocation. So those who means if you find any difficulty in dynamic memory allocation, you can join that session. We will discuss dynamic memory allocation in detail, and that may help you to learn the upcoming topic, that is linked list. Because after the array, I will implement everything, a stack and queue using linked list. Linked list is an alternate of array, and it is much flexible than array, but bit complex. Array is straightforward, and linked list is bit complicated. If you have understanding about pointer, then linked list is nothing. And if you have any doubt in pointer, then linked list is a big topic for you. So you have to work on.
Again, I am suggesting everyone that kindly go through the pointer tutorial, and if you are finding any issues, any difficulty, you can ask me in evening session. Today I will start dynamic memory allocation there, right? No, Hussein, I can't recap many things again and again. You can watch my earlier videos. Then, if you're means thereafter, if you are facing any issue, I will discuss. I will discuss definitely, but not kind of repetition. I will follow this repetition in evening batch after 1 or 2 week, so you can join there and learn. It's okay. Tanmay, you should ask me this problem in evening session. Right now, I will discuss new problem today. Okay, sir. Okay. So, uh, the honest feedback I would like to ask you that if you are facing any issue in pointer, you can tell me right now. How many of you are good in pointer? Because you can say, sir, I know bit. No, you have to be good in pointer. If you are not good, meaning you are not able to get data structure anything. डाटा स्ट्रक्चर समझ में आने का मतलब ही नहीं बनता है if you are bad in pointer. So tell me, anyone? No, then it's fine. Okay then. So I am copying something which I need to paste today. Copy image, paste it here. Wait a minute. Okay, hopefully you can see the screen, and you can understand that this is something like sequences. Okay, so we are going to learn about one more sorting technique, that is insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट क्या है? जब हम आप इस हाथ में सपोज कोई प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है, कोई भी टाइप का प्लेइंग कार्ड, मैं एक टाइप का प्लेइंग कार्ड का डिस्कशन करता हूँ जिसमें 1 to 10 के नंबर्स के कार्ड आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन एवरी राउंड जब आपको कार्ड मिलता है, तो आपको एक कार्ड मिलता है एवरी टाइम। तो व्हेन यू हैव वन कार्ड, लाइक सपोज सपोज यू हैव वन कार्ड, किसी ने दिया, इस पे कितना लिखा था, 5 था, तो ये यहाँ पे रहेगा। एंड दिस इज सपोज आई एम बैड इन, सपोज दिस इज योर हैंड, है ना, एंड 5 इज विथ यू। अभी किसी ने क्या दिया, एक और कार्ड दिया, उस कार्ड पे कितना लिखा था, 2। तो ये कार्ड को आप कहाँ रखोगे,
अगर सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है तो आप इस कार्ड को इधर रखोगे 2। फिर किसी ने कार्ड दिया जिस पे लिखा था 7, तो यू विल फिक्स दैट कार्ड हेयर। फिर किसी ने एक कार्ड दिया जिस पे लिखा था लाइक 8, तो आप उस कार्ड को यहाँ फिक्स करोगे। फिर नेक्स्ट कार्ड आपको मिला जिस पे लिखा था 4, सो यू विल फिक्स दिस कार्ड समवेयर। कैसे करोगे? 8 से छोटा है, 7 से छोटा है, 5 से भी छोटा है इधर, तो यू विल फिक्स दिस कार्ड समवेयर, है ना। एंड समवन विल गिव यू कार्ड जिस पे 6 लिखा था, तो यू विल लाइक 8 से छोटा है, 7 से भी छोटा है, एंड लाइक दिस यू विल फिक्स दिस कार्ड। सो दिस वे आपके कार्ड्स कैसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, राइट। ये आपके कार्ड के अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट काइंड ऑफ जो सॉर्टिंग होता है, इसे ही हम इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं, और इसे हम लोग ऑनलाइन सॉर्टिंग भी बोलते हैं। ऑनलाइन सॉर्टिंग का मतलब है कि जैसे जैसे एलिमेंट आता जाता है। ओके, अभी आ रही आवाज मेरी? एम आई ऑडिबल परफेक्टली नाउ? No, sir. दीपिका इज सेइंग ब्रेक हो रही है। एक मिनट। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? अभी आ रही मेरी आवाज? काइंडली कंफर्म दैट वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, दीपिका, मानव, एनीवन। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. ओके, होपफुली आई एम ऑडिबल। ऑडिबल नहीं होने से बताना। आई बिकॉज आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट 2 वीक। सो 10 बजे ऐसा हो जाता है यहाँ नेटवर्क, आई डोंट नो। तो आई विल चेंज द टाइमिंग ऑफ दिस लेक्चर। ओके, मैं ऑडिबल हूँ? इज क्लियर? ओके, तो ये सॉर्ट में क्या होगा अपने पास, जैसे जैसे अपने पास कार्ड आएंगे वैसे हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो इसके ये वाली सॉर्टिंग के एग्जांपल देखो यहाँ पे जो मैंने रखा है, 4 3 2 10 12 1 5 6। इस ऑर्डर में आपको कार्ड आ रहे हैं, या फिर इस ऑर्डर में आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, इसे आप कैसे सॉर्ट करोगे? तो सिंपली पहले एलिमेंट को हमें सॉर्ट नहीं करना है, पहला एलिमेंट इज परफेक्ट, अपनी जगह पे सही है ना। हमें दूसरे एलिमेंट को देखना है, मीनिंग ये एरे का 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। ये एक एरे है इनफैक्ट, अगर आप इसको प्रोग्रामेटिकली देखना चाह रहे हो ना, दिस इज okay, so this is nothing but an array, right? This is array A.
ए का ये 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सेवेंथ एलिमेंट है। अभी मैं पहले एलिमेंट को कुछ नहीं करूंगा, पहला एलिमेंट इज लाइक ऑलरेडी सॉर्टेड। फर्स्ट एलिमेंट को मैं लूँ देखूंगा। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को चेक करूंगा कि इसके लेफ्ट का जो एलिमेंट है ये इससे अगर बड़ा है, बड़ा है यानी अगर है, तो अभी तो मान लो बहुत सिंपल दिख रहा है, सॉर्ट कर दिया मैंने। दूसरा क्या दिख रहा है, 2, इस नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ लिया मैंने। अभी इसको देखूंगा, इसके लेफ्ट का एलिमेंट ओके इससे बड़ा है, और लेफ्ट का एलिमेंट और बड़ा है, मतलब मैं लेफ्ट तब तक सर्च करता रहूंगा जब तक कि मुझे इस एलिमेंट के लिए एक परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाता है। जैसे 2 के लिए परफेक्ट पोजीशन क्या है, 3 के लेफ्ट में, है ना। सिंस हमें पता है कि लेफ्ट में पूरा सॉर्टेड एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से सॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो लेफ्ट ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा इस शॉर्ट में। ठीक है, तो 2 बस हमें परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी है, जिस एलिमेंट को अभी हमने होल्ड किया हुआ है इसकी परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी है। तो अभी इसकी परफेक्ट पोजीशन क्या है, 3 से पहले। अगला देखते हैं। अभी ये तीनों पार्ट तो हमारा इतना तक सॉर्टेड है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। अभी 10 को मैं अगर लेफ्ट में जाऊं तो ऑब्वियसली इससे बड़ा है 10, छोटा तो है नहीं। तो इससे लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में मेरा पूरा क्या है, सॉर्टेड है। तो 10 इधर कहीं नहीं जाएगा, तो 10 अपनी ही जगह पर रह जाएगा। तो इस तरह से ये अभी तक का पूरा सॉर्टेड एरे हो गया। अभी मैंने 12 को होल्ड किया, तो 12 से का जो लेफ्ट एलिमेंट है ये ऑलरेडी क्या है, इससे छोटा है। और सिंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, इसलिए हमें और लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये इस एलिमेंट तक अब मेरा सॉर्ट हो गया। अब एक को पकड़ते हैं। एक के लिए 12 से छोटा है एक, राइट, 10 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 3 से भी, 2 से भी, इसलिए 1 की ये परफेक्ट प्लेस हमें मिल गई, राइट। तो अभी हमारा एलिमेंट कहाँ तक सॉर्ट हो गया, यहाँ तक सॉर्टेड है, राइट। अभी हमें मिला 5, तो 5 क्या है, 12 से छोटा है, 10 से छोटा है, 4 से बड़ा है, राइट। तो ये परफेक्ट प्लेस है हमारे पास 5 के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, प्लेसेस तो मिला, और ऊपर भी हमने क्या किया, कुछ नहीं, 12 को शिफ्ट कर देंगे, 10 को शिफ्ट कर देंगे, और 5 को इसकी जगह पे इंसर्ट कर देंगे, राइट। यही काम देखो, यहाँ पे 5 इंसर्ट हो गया है, 12 यहाँ चला गया, और 10 आगे बढ़ गया है। ये शिफ्ट कैसे होता है, ये हमने एरे में जब डिलीशन कर रहे थे तब हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। और एरे के मिड में अगर हम इंसर्शन करते हैं तो यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सेम कंपोनेंट, सिंस यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। 6 को चेक करना है, तो 6 इज लेस देन 12, लेस देन 10, बट नॉट लेस देन 5, ग्रेटर देन 5। तो इसको 6 को यहाँ पे इंसर्ट होना होगा। यहाँ पे इंसर्ट होने के लिए अपने पास जगह तो नहीं है, तो 6 को क्या करेंगे, इस पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे, इस पोजीशन पे यहाँ 6 रखेंगे। तो 6 रखने से पहले 12 को आगे मूव करेंगे, 10 को आगे मूव करेंगे, और जगह खाली हो जाएगा तो इंसर्ट कर देंगे। दैट यू कैन विजुअलाइज कि 12 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, और 6 को इस प्लेस पे इंसर्ट कर दिया गया, और फाइनली ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। 50% पार्ट समझ में आया या नहीं आया? देखिए 50% तो कोडिंग से समझ में आने वाला है, राइट, यस और नो इन चैट बॉक्स। ध्यान हमें दो ही बातें देनी है। पहली बात की, एलिमेंट को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, और जो उसका राइट प्लेस होगा वहां जाके उसको इंसर्ट करेंगे। दूसरी बात की, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट्स होता है इसमें। ओके फाइन, थैंक यू, मैनी ऑफ यू आर सेइंग यस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड में ही हमें यहाँ पे एल्गोरिदम मिल रहा है। एक्चुअली ये देखो, यहाँ क्या पास कर रहे हैं हम लोग, एरे पास कर रहे हैं, और यहाँ एरे का साइज पास कर रहे हैं। तो एरे पास करने का मतलब ये पास कर रहे हैं, दिस इज आवर एरे, दिस इज आवर एरे ए, दिस इज 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ। तो ये हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 8 पास कर रहे हैं एन की जगह पे, राइट। तो अभी क्या है, आई एक वेरिएबल है हमारे पास,
है ना। जे एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक। और क्या है, एक की है, की वेरिएबल है अपने पास, की वेरिएबल है, राइट। तो ये सारे वेरिएबल अभी अपने पास है यहाँ पे क्रिएट हुए। अभी आई को किससे इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज किया। और आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लेस देन यहाँ तक जाएगा। और की इक्वल टू क्या, ए एरे ऑफ आई। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये सारे पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसकी हमें भी जरूरत नहीं है, बस वो दिखाने के लिए लिखा था। तो आई की वैल्यू 1 है अभी, राइट। अभी ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 क्या है, ए ऑफ 1 इज 3। अभी हम 3. लोग इस स्टेज में है, ए ऑफ 1 इज 3, तो की में क्या चला गया, 3 चला गया। अब एक जे को क्या इनिशियलाइज किया, i-1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, मूव एलिमेंट ऑफ दिस दैट आर ग्रेटर देन की। वो सारे एलिमेंट को मूव कर दो जो इस की से बड़ा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखो अभी ये पहले वाले इटरेशन में तो इतना समझ में नहीं आएगा, अगले वाले आगे के इटरेशंस में हमें ये बातें समझ में आएंगी। पहले इटरेशन में क्या है कि जे अगर 0 से बड़ा या बराबर है, तो ये कंडीशन तो अभी हमारे लिए ट्रू है क्योंकि जे 0 है। और ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, ठीक है। ए ऑफ जे का मतलब, जे की वैल्यू 0, तो ए ऑफ जे का मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 ग्रेटर देन 3 से है ना, की से बड़ा है, राइट। यानी लेफ्ट साइड वाला हम क्या चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाला हमारे की से बड़ा है या नहीं है, बस हम यही चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड वाला हमारी जो की वैल्यू है इससे, या जिसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, इससे बड़ा है या नहीं, ठीक है, पहली बात। और ये चेक कर रहे हैं कंडीशन कि जे की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना माइनस पे, इसलिए यहाँ पे आके जे रुक जाएगा। इसलिए जे को चेक कर रहे हैं कि जे 0 से कम बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। अब इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन Voice ट्रू, is break. ओके 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 ओके, तो ये दो कंडीशन हमने चेक किया। पहला कंडीशन ये है कि जे की वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो हमारी की वैल्यू से, यानी जिस वैल्यू को अभी हम होल्ड करके रख रहे हैं, जिसको सॉर्ट करना चाहते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना चाहते हैं, उससे बड़ा है या नहीं, बस यही चेक कर। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाली एलिमेंट को राइट शिफ्ट कर देना है। यानी J+1, जे की वैल्यू क्या है अभी, कौन बोलेगा, कृष्णा। ए ऑफ J+1 क्या होगा, कृष्णा, दीपिका। तो ए ऑफ जे जे की प्लस वैल्यू तो 0 है ना। हाँ 0 है, तो J+1 क्या होगा, 1 होगा। तो ए ऑफ यस वन, सर, ए ऑफ वन 1 होगा। मतलब, है ना, ए ऑफ 1 यानी ये वाला ए प्लेस, ऑफ 1 मतलब 3। ये वाला प्लेस, है ना। यस तो सर। ये वाले प्लेस में क्या चला जाए, ए ऑफ जे चला जाए, यस। है ना, ए ऑफ 0 चला जाए। तो इस प्लेस पे क्या आ गया, यस सर। 4 आ गया, इनफैक्ट इस प्लेस पे 4 आ गया। अब जब 4 आ गया तो मैंने क्या किया, फिर से जे को J-1 किया। जे क्या था, जे यहाँ था, है ना। तब तो ये J+1 था ना, क्योंकि जे क्या है, 0 है। तो जे इज समथिंग समवेयर हेयर। जे को J-1 किया तो जे कहाँ चला गया, -1 पे चला गया, है ना। तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गया क्योंकि जे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, ठीक। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं, वाइल लूप से बाहर आ गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अभी जो जे की वैल्यू है वो क्या है, अभी -1 है। तो J+1 पे की रख दो, तो J+1 करेंगे तो क्या होगा, जे की वैल्यू 0 होगा, है ना। इस जगह पे क्या रख देंगे, जो की में रखा हुआ है, यानी 3 को यहाँ हम रख देंगे। यही आइट्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है।
बिट कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तुम्हें, मगर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं इसको सेल्फ आइट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा इंटरनल फिगर है, पूरा डिटेल फिगर है, तो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मुझे कोड पार्ट को अलग लेने दो। हम्म देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एलिमेंट हमारे पास है 4 3 5 2 6 1, राइट, एंड 7। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज नथिंग बट एरे। इसका साइज जो भी है यहाँ से पास कर रहे हैं। आई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं। आई की वैल्यू इज एट दिस मोमेंट इज 1। जे की वैल्यू भी के लिए भी हम एक वेरिएबल प्रिक कर लेते हैं। जे की वैल्यू इज आई माइनस वन, लाइक 0। तो आई की वैल्यू कहाँ है? आई यहाँ है। जे कहाँ होगा? एक इससे पीछे होगा। और अभी हमारा की कौन है? ये एलिमेंट है की एट दिस मोमेंट, राइट। ये सारे असाइनमेंट हमारे यहाँ हो रही। आई की वैल्यू यहाँ असाइन हुई, की वैल्यू क्या हुई? जो अभी ए ऑफ 1 पे है ना, और जे कहाँ चला गया? आई माइनस वन पे, राइट। इतना काम हो गया। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? जे ग्रेटर देन 0 है, राइट, है, क्योंकि जे भी यहाँ है। ये इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, राइट। तो और लेट मी फिक्स इट एज ए बॉक्स। 0 2 5 एंड 6, ठीक है। तो अभी जे ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, राइट। और ए ऑफ 0 पे क्या है? जो भी है वो की से बड़ा है ना। ए ऑफ 0 पे 4 है, वो की से बड़ा है, 3 से बड़ा है। ऐसे केस में क्या होगा? ए ऑफ जे प्लस वन जो होगा, यानी ए ऑफ वन जो होगा, ए ऑफ वन यानी ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो की में हमने, की एक वेरिएबल है जिसमें हमने 3 को रखा हुआ है। कुछ नहीं कर रहे, एक टाइप का ये स्वैप है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं ए ऑफ 0 पे जो भी है, यानी 4 को हम यहाँ रख रहे हैं। वी आर फिक्सिंग 4 है। और फिर क्या करें? जे को -1 कर रहे हैं। तो जे को -1 करने से 0 माइनस वन इज -1। तो जे यहाँ से हट जाएगा और जे इधर कहीं चला जाएगा -1 पे, राइट। अब फिर ये लूप चलेगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे इज ग्रेटर इक्वल 0। फॉल्स होने के बाद ये लूप खत्म। इस स्टेटमेंट पे आएंगे और जे+1 पे की को रख देंगे। जे की वैल्यू भी क्या है? -1। -1 + 1 इज 0। तो ए ऑफ 0 पे हम क्या रख देंगे? की को रख देंगे। ए ऑफ 0 कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। इस पे भी हम क्या रख देंगे? की को रख देंगे। की में भी क्या है? 3 है, 3, राइट। तो ये हमारा सिनारियो है अभी का, 3 4 5 2 6 1 एंड 7, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज अरे। और अभी हमारा ये पार्ट जब खत्म हो गया, ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है? ये वाला जो व्हाइल लूप है वो इस फॉर लूप के एक्चुअली अंदर में है ना, इस फॉर लूप के इनसाइड है। तो ये व्हाइल लूप खत्म हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, वापस से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 पे जाएगी, है ना। तो की में क्या चला जाएगा? ए ऑफ 2, यानी अब की किसको पॉइंट कर रहा है? इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। की में क्या चला जाएगा? 5, राइट। अब
जे की वैल्यू क्या होगी i-1, आई क्या है 2 है, तो जे की वैल्यू इज 1। मतलब आई अगर यहाँ पे है, आई अगर यहाँ है तो जे कहाँ चला जाएगा, जे विल बी हेयर, राइट। अब फिर से वाइल लूप पे आएंगे, जे 0 से बड़ा है, यस। और ए ऑफ जे जो है वो की से बड़ा है क्या, 4 की से बड़ा है क्या, फॉल्स। यानी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गए। कंडीशन फॉल्स होने के कारण क्या होगा, j+1 पे की वैल्यू चली जाएगी। तो j+1 मतलब क्या, j की वैल्यू क्या 1, 1+1 इज 2, राइट। सो दिस इज लाइक a ऑफ 2 इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि की में अभी क्या है 5 रखा हुआ है। सो वापस से इसी प्लेस को 5 को ही 5 से रिप्लेस कर देगा। यानी जब कुछ भी स्वैप नहीं होगा ना तो वही सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पास के बाद का स्टेटस है। फिर 3 4 5 2 6 1 7, राइट। तो ये 0 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमारे पास फिर से ये इटरेशन चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू हुई 3, ठीक है। दिस इज ए, तो आई कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। अभी की वैल्यू क्या क्या हो गई, a of 3, a of 3 में क्या है 2 है, तो की वैल्यू हो गई 2। और j इक्वल टू i-1, आई क्या है 3 है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब j ठीक एक पीछे रहता है ना। और यहाँ j का काम है यहाँ से यहाँ तक स्कैन करना, पीछे के सारे एलिमेंट को स्कैन करना, इसके साथ कंपेयर करना। यानी की अभी यहाँ पे है ना, तो की के साथ बाकी सारे एलिमेंट को कंपेयर करने का काम j का है, ठीक है। और आई होल्ड करता है कि मैंने लास्ट कहाँ कहाँ तक विजिट किया हुआ है, ठीक है। की होल्ड करता है कि किस एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये काम हो गया। अभी व्हाइल लूप पे आएंगे, जे बड़ा है 0 से, सही बात है। और ए ऑफ जे यानी 5 इज ग्रेटर देन की वैल्यू क्या है 2 है अभी अपने पास, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। राइट, ऐसा होने से क्या होगा, a of j+1 यानी j के अगला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए, a of j हो जाए। यानी यहाँ पे क्या चला जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, और क्या हो जाए j-1, यानी j यहाँ से पीछे चला जाए, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक हो, j ग्रेटर देन 0 है, राइट। और इसके पीछे वाला एलिमेंट की से बड़ा है ना, यानी 4 जो है वो की से बड़ा है, राइट, सही बात है। तो क्या करो, 4 को राइट शिफ्ट कर दो, ये राइट शिफ्ट करने का कोड है कि j+1 पे ले जाओ, j की जो वैल्यू हो j+1 पे जाके पेस्ट कर दो। यानी j पे क्या है अभी 4 है, उसको j+1 पे ले जाके पेस्ट कर दो, और j को क्या कर दो, एक पीछे कर दो। पीछे कर दिया, फिर से लूप चला, j 0 से बड़ा है, और अभी जिसको पॉइंट कर रहा है ये 3, वो की यानी 2 से बड़ा है, राइट। तो फिर से क्या कर दो, 3 को आगे शिफ्ट कर दो, तो 3 को आगे शिफ्ट करने का मतलब कॉपी कर दो, और j को पीछे ले जाओ। j अभी कहाँ चला गया, -1 पे चला गया। अभी ये कंडीशन, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया।